Hello students, this is the third class of class 12th, started with Indian economy chapter number 3 economic reform 1991. Firstly, I will tell you, when you are not subscribing our channel, St. Xavier's channel, so you have to subscribe, otherwise you are not getting the notification from each of the subjects videos which are posted on this channel. So please subscribe this channel. So now we started this chapter with the topic of meaning of Indian reform, economic reforms. Economic reforms means it is the fundamental change that were launched in 1991. After the independence, there is a trade barriers started for the compete the other sectors or the compete the other countries. Trade barriers means we have to stop the import and export फ्रॉम आवर कंट्री. हमने अपने कंट्री के ट्रेड बैरियर्स लगाने से ये प्रॉफिट हुआ कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया था. बट एट द टाइम ऑफ 1991 वी रिमूव द ट्रेड बैरियर्स. सो एट दैट टाइम सम economic reform we have to taken. Economic reforms is a change. We have to change some things at the time of 1991. We have to increase our size, government size, remove some agreement, de-agreement. We have to make a re-agreement and presence of government at the time of rules regulation changes. Some changes are there at the time of 1991. So we start, I think it's clear. So some explanation is given also. Economic reform usually refer to the deregulation or the time of reduction in the size of government, remove distortion. So you see this explanation also. If any confusion, you ask. Next one is needs of economic reform in India. Needs, क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत, there is a lots of need at the time of 1991 because we are able to compete the other countries with the help of production and with the help of our market. So there is a need. Some is, first is increase in the physical deficit. What is the meaning of physical deficit? Physical deficit is the shortfall in the गवर्नमेंट इनकम. गवर्नमेंट की इनकम घट रही थी, इसलिए वो ज़रूरी था, उसको बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी घट गई थी कि हमको उसको बढ़ाने के लिए ये चेंजेस को लाना था. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस बनाना था पेमेंट के बीच का, पेमेंट और इनकम के बीच का, अपनी मार्केट का. गल्फ क्राइसिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे. नेक्स्ट वन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में घटता जा रहा था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था लेस हो रहा था. राइज इन प्राइजेस, डे बाय डे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे बिकॉज. नेक्स्ट वन इज पुअर परफॉर्मेंस इन पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती चली जा रही थी. दैट आर द सम पॉइंट्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. So some main features also given here: liberalization, privatization and globalization. These 3 points taken, these 3 steps taken at the time of 1991, which is very helpful for our economy. First is liberalization. Liberalization means removing the trade barriers. At that time we have to remove the trade barriers and we started the import export again. So at that time some points are given. First is industrial licensing system given. नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल. फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल ख़त्म हुआ या उसको स्टार्ट किया गया, हमने उसको स्टार्ट किया बढ़ाना. नेक्स्ट वन इज़ प्राइस कंट्रोल ऑफ गुड्स. प्राइस कंट्रोल किए गए गुड्स के जो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे थे. इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट के लिए हमने लाइसेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. दीज स्टेप्स टेकन एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन. सम स्टेप्स ऑल्सो गिवन हियर. सो फर्स्ट इज स्टेप इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. इंडिपेंडेंट था हर कंट्री इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के लिए, बट इन द लिमिट ओनली. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द स्मॉल स्केल सिस्टम. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पैसे को बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई कि हम कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का हम इम्पोर्ट कर सकते हैं लाइक मशीन, प्लांट एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू प्लांट, नॉट लाइक दैट वो पेड़ वाला, that is a plant of machine plant. freedom to import technical know how. टेक्निकली हम फ्रीडम था हमारे पास कि हम टेक्निकली हम इंपोर्ट को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़. हम फ्रीडम था इस चीज़ का भी हमें कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ा सकते हैं. देयर इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट.
मोनोपोलीज एक्ट हटा दिया गया था कि किसी की भी मोनोपोली नहीं है, जो चाहे इस बिजनेस में आ सकता है. नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन. रिमूव किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया. यहाँ पे इम्पोर्ट के क्राइटेरिया स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन. So in the privatization we have to promote the private sector more and more in our country. At that time in 1991 public sector not having lots of income, that's why we have to launch the private sector more. So most of the countries of public sector also converted into the private sector at that time. At that time there is a 17 reserved companies of public sector converted. After converting, only four companies are there for the public sector. So some explanation also given. Private sector means we have to promote the private sector industries and we have to increase our private investment. Next one is steps of taken of privatization. First one is sale of shares को सेल करना स्टार्ट हुआ. डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम की गई. मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कम हो गया. नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिड्यूस 17 to up to 4. आई हैव ऑलरेडी टेल यू. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, माइनिंग ऑफ ऑटोमिक मिनरल्स, ऑटोमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट. ये सारी चीज़ें थी जो स्टेप्स लिए गए एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन. These are very helpful for our Indian economy. At that time of globalization also launched. Globalization means we have to launch our business out of the boundary line. Boundary line के बाहर जब हम business ले जाते हैं, अपनी country के बाहर, means जब हम दूसरी countries में अपने business को expand करते हैं, it means of globalization. So globalization means establish to relation ऑफ द इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मीन्स हमने पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं. इसकी हमारे पास फ्रीडम थी, मीन्स ग्लोबलाइज हो गए थे हम. सम सेक्टर्स आर गिवन स्टेप्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन. सम स्टेप्स ऑल्सो टेकन एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. रिडक्शन इन टैरिफ को घटाया गया. टैरिफ मीन्स बैन जो चीज़ें थी उनके बैन, जो मतलब जिस चीज़ों पर रोक थी उन चीज़ों को थोड़ा रिमूव किया गया. लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ को लंबे समय तक बनाया गया. ट्रेड पॉलिसीज़ मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग परचेजिंग सेलिंग, दीज आर द ट्रेड पॉलिसीज़ लंबे समय तक बनाई गई. पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, कुछ सेक्टर की पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी की गई, मतलब चेंज किया गया. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी लिमिट, इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर लिमिट बढ़ाई गई. So these some points also affected at the time of globalization. Types of economic reform also given. There are 4 types of economic reform. One is structure reform initiative. Structure पे initiative लिया गया कि कैसे हम companies के structure को expand करेंगे. Physical reforms, it is a government income. Government की income को हम कैसे बढ़ाएंगे. Infrastructure reform, infrastructure हम companies का कैसे develop करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल एंड मनी मार्केट रिफॉर्म. कैपिटल मार्केट को हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, या मनी मार्केट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. कैपिटल मार्केट में आपकी 2 मार्केट आती हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. इट इज़ ऑलरेडी यू नो इन द बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो. You have to expand this topic. Means capital market, there is 2 market, where is the primary and secondary, where we are selling our shares and debentures also. In the money market there is a short term market for the certificate of deposit and money deposit and the commercial papers, etc. These are the equipments of money market. So some reforms also taken in these 4 favors. Next one is achievement of economic reform in India. What we achieve when we are taking these types of decisions. So economic reform in India का क्या effect पड़ा, achievements क्या क्या हो सकते थे जो हुए हैं. नेक्स्ट फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्ट. हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा. नेशनल प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट वन इज़ जीएनपी इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. हम फॉरेन की कंपनीज़ में पैसा लगा सकते हैं और फॉरेन की कंपनीज़ हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. फॉरेन करेंसी रिजर्व भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट का हम इनकम बढ़ा सकते हैं. इंपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बिफोर 1991 देयर इज़ अ ट्रेड बैरियर्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. दैट्स वाई
डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया गया, फिर से उनको रेगुलेट किया गया. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में भी मत आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी हमको बियर ना करना पड़े. सो दीज सम अचीवमेंट्स वी हैव टू अचीव एट द टाइम ऑफ economic reform in India. Nowadays also we have to face these achievements. Some negative effects also given here for the reform. So we have to see first national sovereignty at the stake leading commercial and political colonialism. Means commercial things में भी कुछ changes लाए गए, stake hold किया गया, political तुम्हारे आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी देखा गया. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का हमने ट्रांसफ़र स्टार्ट किया. वाइड गैप बिटवीन द रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन. इससे क्या हुआ, पुअर पर्सन और रिच पर्सन में डिफरेंस आ गया, गैप आ गया बहुत बड़ा. डिक्लाइन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मतलब जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे होम हाउस होल्ड्स होते हैं, उनमें कमी आ गई, उनकी डिमांड घट गई. क्यों? क्योंकि जब हमने फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारी फॉरेन मार्केट ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया. इससे कई सारे उनके प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आ गए. तो जो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट थे, जो हमारी मार्केट में बन रहे थे, उनकी डिमांड कम हो गई. क्लियर. नेक्स्ट वन, फेल टू ओबे द लेबर लॉ. हम लेबर लॉ को फॉलो करना ही भूल गए. क्लियर. उससे कुछ नेगेटिव, कोई भी काम हम करते हैं तो उसके सम पॉजिटिव इफेक्ट्स वी हैव टू फेस एंड सम नेगेटिव ऑल्सो वी हैव टू फेस. एट दैट टाइम लेबर लॉ को भी उन्होंने बिल्कुल ही उनकी जो लॉ था उसको उन्होंने किसी तरह से अहमियत नहीं दी. दे आर नॉट टेक इनिशिएटिव एट द टाइम ऑफ लेबर लॉ. सोशली इनइक्वालिटी आ गई. इक्वलिटी मतलब कि सबको बराबर से देखने की भावना कम हो गई. कई सारे फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया. वाई? बिकॉज वी हैव टू क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, वी हैव टू प्रमोट द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, बट वी हैव टू प्रमोट द फॉरेन सेक्टर मार्केट. दैट्स वाई फार्मर्स फेसिंग लॉट्स ऑफ लॉस. दैट्स वाई दे कमिट सुसाइड. नेक्स्ट वन इज किल द डोमेस्टिक बिजनेस. इसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक बिजनेस भी ख़राब होने लगा. डोमेस्टिक बिजनेस मतलब दोज बिजनेस इनरोल्ड इन आवर कंट्रीज लाइन, मतलब कंट्री के अंदर जो बॉर्डर लाइन के अंदर हो रहा है, दैट इज़ अ डोमेस्टिक बिजनेस. ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी व्हेन वी आर स्टार्टेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म. सो सम नेगेटिव इफेक्ट्स वी हैव टू फेस ऑल्सो. सो कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज, एट ग्लांस में हम अगर देखें, सो वी हैव टू फेस मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ economic reform in 1991. We have to increase our some sectors and increase our Indian economic growth also, but we have to face most of the negative sectors at the time of economic reform. So thank you for listening me and please subscribe this channel. Thank you.